Shilpa Khatale from ACS Girls Junior College, Pasupauli, Nagpur. We have already started the chapter reproduction in lower and higher plants, and today we will discuss about the development of endosperm. Development of endosperm. The process of development of endosperm starts from the ट्रिपल फ्यूजन. ट्रिपल फ्यूजन से स्टार्ट होती है. हम डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. When one of male gamete fuses with the egg, it forms zygote. It converts into development of embryo, and second male gamete fuses with the secondary nucleus and form endosperm. The process is known as triple fusion, and this triple fusion is responsible for the development of endosperm. Now, in angiosperm, the product of second fertilization or triple fusion is primarily endosperm nucleus. Second male gamete, when fuses with the secondary nucleus, it forms primary endosperm nucleus. There is a formation of endosperm. The endosperm is post-fertilization product and is commonly called as triploid tissue. हम डबल फर्टिलाइजेशन में देख चुके हैं. दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ था. फर्स्ट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज सिंगेमी एंड सेकेंड फर्टिलाइजेशन इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन. फ्यूजन होने के बाद ही यहाँ पर डेवलपमेंट जो है एंडोस्पर्म का वो स्टार्ट होने वाला है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पोस्ट fertilization changes, and endosperm contains nutritive tissue, triploid tissue. जो भी एंडोस्पर्म होंगे, जो भी एंडोस्पर्म टिश्यूज होंगे, वो ट्रिप्लॉइड इन नेचर रहेंगे, बिकॉज secondary nucleus already contain two nuclei and one male gamete fuses with these nuclei and it contain triploid. ये ट्रिप्लॉइड बन गए थे. अब जितने भी सेल डिवाइड होंगे, सारे के सारे सेल्स जो है वो ट्रिप्लॉइड ही रहेंगे. ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस repeatedly divide mitotically to form nutritive tissue called endosperm. I have already told you that this is triple fusion. Secondary nucleus and second male gamete fuses with the secondary nucleus and form endosperm. All the tissues of endosperm becomes triploid because of these fusion. यहाँ पर तीन न्यूक्लियर फ्यूज हुए हैं, एक सेल तैयार किया है इन्होंने, तीनों ने फ्यूज होकर एक सेल तैयार किया है. यहाँ पर सिंपली हम यहाँ पर इसको ट्रिप्लॉइड टिश्यू बोल सकते हैं. Now these triploid tissue divide and redivide mitotically repeatedly. जितनी भी बार इसका डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, और जितने भी सेल्स तैयार होंगे, सारे के सारे ट्रिप्लॉइड इन नेचर ही रहेंगे. In post fertilization changes within the ovule, embryo and endosperm are seen to develop simultaneously. The development of endosperm and development of embryo, both the process takes place simultaneously. दोनों की प्रोसेस जो है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एंड एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, दोनों की प्रोसेसेस साथ में ही चलती है. बिकॉज इन एम्ब्रियो जो है, इसके डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है. अब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम जो है वो एंडोस्पर्म करता है. इसलिए एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो दोनों का डेवलपमेंट साइड बाय साइड चलता है. दोनों का डेवलपमेंट जो है एक साथ होता है. एंडोस्पर्म इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू for the nourishment of developing embryo. Endosperm provide nutrition to the embryo, or it helps to develop the embryo. The other cells of embryo sac disorganize sooner or later, and here only formation of embryo takes place and formation of और डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म टेक्स प्लेस. इन सेल्स को छोड़कर बाकी के जो भी सेल्स होंगे वहां पर, जिनका वहां पर अब कोई काम नहीं है, जैसे कि एंटीपोडल्स हो गए, ये सारे के सारे सेल्स जो है वो डीजेनरेट
होना स्टार्ट हो जाएंगी। वहाँ से उनका अगर वहाँ पर कोई काम नहीं है तो वो वहाँ से डिजेनरेट हो जाएंगे और सिर्फ यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ही स्टार्ट रहेगा। सिर्फ इनके ही सेल्स अब यहाँ पर प्रेजेंट है। The formation of triploid endosperm nucleus triggers the cell division which leads to the formation of endosperm. The triploid nucleus of endosperm which is formed after the triple fusion. ट्रिपल फ्यूजन के बाद जो भी ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस हमको मिला है उसी के डिवीजन से बार बार डिवीजन होने की वजह से ही यहाँ पर एंडोस्पर्म तैयार होने वाला है। मीन्स these are secondary nucleus and this is second meiosis, which is fused and form triploid cell. It divide mitotically. अब यहाँ पर mitotic division ही क्यों होगा? Because all the cells are triploid and there is a necessary, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी है कि एंडोस्पर्म तैयार हो। इसके लिए इस सेल को डिवाइड होना है माइटोटिकली, उसके ही जैसे सेल्स उनको तैयार करने हैं। तो यहाँ पर डिवीजन जो होगा वो माइटोटिक ही होगा और माइटोटिक डिवीजन होने की वजह से अगर ये सेल ट्रिप्लॉइड है तो सारे के सारे सेल्स जो है वो ट्रिप्लॉइड ही रहेंगे, चाहे डिवीजन कितने भी बार हो, सारे के सारे सेल्स यहाँ पर ट्रिप्लॉइड ही रहेंगे। नाउ in some cases developed endosperm totally consumed during embryo development so that natural seed do not possess endosperm. Such seed are called as non-endospermic or ex-albuminous seed. अब ऐसा कभी कभी होता है कि जब सीड का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो सारा का सारा एंडोस्पर्म जो है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में यूज हो जाता है। अब एंडोस्पर्म जो है वहाँ पे मतलब यहाँ पे परसिस्ट नहीं हो पाता, वहाँ पे नहीं हो पाता, रह नहीं पाता। ऐसी सीड्स अगर तैयार होती है तो हम उनको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे बिकॉज देयर इज absence of endosperm or all the endosperms are consumed by the seed. सारा का सारा जो एंडोस्पर्म है वो सीड ने कंज्यूम कर लिया है। एग्जाम्पल पी, बीन, ग्राम, ग्राउंडनट एक्सेट्रा। While in other cases endosperm persists in the mature seeds and it continue to support the growth of embryo during germination of the seed is called as endospermic seed और albuminous seed. अब ऐसा होता है कि सीड का जब डेवलपमेंट होता है तब कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, एंडोस्पर्म को पूरी तरह से यूज नहीं करते, उनको बचा कर रखते हैं ताकि जब कभी सीड जर्मिनेशन का टाइम आए तो एंडोस्पर्म उनको डेवलपमेंट करने के लिए, जर्मिनेट होने के लिए मदद करे। तो ऐसी सीड्स को हम यहाँ पर एंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे या फिर अल्ब्यूमिनस सीड बोलेंगे। एग्जाम्पल कैस्टर, संतरा, कोकोनट, सीरियल्स लाइक मेज, व्हीट एक्सेट्रा। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ डेवलपमेंट। अब टिश्यूज का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उसके बेसिस पे यहाँ पे एंडोस्पर्म के 3 टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियर टाइप, सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर टाइप। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप फाउंड इन 161 फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की 161 फैमिलीज में यहाँ पर न्यूक्लियर टाइप का एंजियोस्पर्म पाया जाता है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैक्सिमम एंजियोस्पर्मिक प्लांट में न्यूक्लियर डिवीजन ही होता है। हियर प्राइमरी एंजियोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगोज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन और कैरियोकाइनेसिस। सिंपली कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है कि न्यूक्लियस डिवाइड होता है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा। These results in the formation of large number of triploid nuclei freely suspended in common cytoplasm of central cell. यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारे ट्रिप्लॉइड सेल्स तैयार होंगे और सेंट्रल सेल मीन्स यहाँ पर जो सेल होगा उसका डिवीजन हो रहा है। डिवीजन होने के बाद बहुत सारे ट्रिप्लॉइड सेल्स तैयार होंगे और ये एक सेल में सारे के सारे ट्रिप्लॉइड सेल्स जो है ये सेंट्रल
सारे सेल्स जो है जो फॉर्म हुए हैं ट्रिप्लॉइड सेल्स, वो सेंट्रीपिटल मैनर में अरेंज हो जाएंगे। बट इन सेवरल केसेस, लेकिन बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनमें वॉल फॉर्मेशन जो है, वॉल फॉर्मेशन की प्रोसेस इनकम्प्लीट रह जाती है, जैसे कोकोनट। एग्जाम्पल wheat, sunflower and coconut. Coconut has multicellular endosperm in the outer part and free nuclear as well as vacuolated endosperm in the center. एक वैक्यूलेटेड पार्ट रहता है सेंटर में कोकोनट में, इसका डिवीजन जो है इनकम्प्लीट रहता है। आउटर पार्ट में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पर पाया जाता है। इन सेल्यूलर टाइप primary endosperm nucleus undergo nuclear division which are followed by cytokinesis, means the tissues of endosperm and the cytoplasm divide simultaneously, दोनों के दोनों एक साथ ही डिवाइड होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो भी सेल्स फॉर्म हुए हैं सब में साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, जबकि फ्री न्यूक्लियर में नहीं था। यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियाई डिवाइड हुए थे, अरेंज हुए थे सेंट्रीपिटल मैनर में, और साइटोप्लाज्म यहाँ पर जैसे के वैसे ही मिल गया था, इसका डिवीजन नहीं हुआ था। बट इन सेल्यूलर केस यहाँ पर न्यूक्लियाई भी डिवाइड हो रहा है और साइटोप्लाज्म भी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है इक्वली। Therefore, endosperm development occurs in cellular form right from the beginning. जैसे एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तभी से यहाँ पर एंडोस्पर्मिक सेल का भी फॉर्मेशन होगा और साइटोप्लाज्म भी उसके साथ डिवाइड होगा, और ये प्रोसेस स्टार्टिंग से ही शुरू होगी। जैसे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, ये दोनों का डेवलपमेंट, दोनों का डिवीजन हम यहाँ पे बोल सकते हैं, एक साथ ही यहाँ पर पाया जाएगा। नाउ इट इज लेस कॉमन एंड सीन इन मोस्टली 72 फैमिलीज ऑफ डाइकॉट। ये बहुत कम पाया जाता है और डाइकॉट की 72 फैमिलीज में पाया जाता है, जिसमें कुछ मेंबर्स के नाम आपको दिए हुए हैं, जैसे पिटूनिया, एडोक्सा, बाल्सम एक्सेट्रा। These are the families of dicot in which cellular type of endosperm or division of cellular type is found. Now, look at endosperm in this type. First division of primary endosperm nucleus is followed by wall formation. यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले यूरोपियन एंडोस्पर्म में सबसे पहले डिवीजन जो हो रहा है वो साइटोप्लाज्म का हो रहा है, वॉल फॉर्मेशन हो रही है और सेंट्रल सेल जो है वो 2 अनइक्वल सेल में यहाँ पर डिवाइड हो गया है। एज अ रिजल्ट अब जो वॉल फॉर्मेशन हुआ उसके बाद क्या हुआ, सेंट्रल सेल इज डिवाइडेड इनटू अ लार्ज माइक्रोपाइलर सेल एंड स्मॉल चलाजल चैम्बर। दिस सेल इज नोन एज माइक्रोपाइलर चैम्बर बोल सकते हैं या फिर सेल भी बोल सकते हैं, एंड दिस इज चलाजल चैम्बर। इस तरह से ये वॉल जो फॉर्मेशन हुई है इसकी वजह से यहाँ पर 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ। ये स्मॉल सेल है जिसको हम चलाजल चैम्बर बोलेंगे, दिस इज लार्ज सेल व्हिच इज नोन एज माइक्रोपाइलर चैम्बर। नाउ इन बोथ दोनों में मतलब माइक्रोपाइलर एंड चलाजल दोनों में डेवलपमेंट जो होगा वो एक जैसा ही होगा, उनमें कोई फर्क नहीं होगा। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म अकर्स एज न्यूक्लियर टाइप, दोनों में न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं सेल जो है उसने न्यूक्लियर डिवीजन करने के बाद सारे के सारे सेल्स को पेरीफेरी में अरेंज कर दिया है, सेंट्रीपिटल मैनर में अरेंज कर दिया है, एंड चलाजल चैम्बर में भी सेम प्रोसीजर फॉलो की गई है। न्यूक्लियर टाइप न्यूक्लियर डिवीजन होगा, सारे के सारे सेल्स जो है सेंट्रीपिटल मैनर में अरेंज हो जाएंगे। इट इज एन इंटरमीडिएट टाइप व्हिच इज कॉमन इन एलोबियल सीरीज ऑफ मोनोपॉड। मोनोपॉड में एलोबियल फैमिली होती है, इनमें ये कॉमनली पाया जाता है, और जैसे कि इलोबियल में ही पाया जाता है इसलिए इस एंडोस्पर्म का नाम भी इलोबियल ही रख दिया है, इलोबियल एंडोस्पर्म। नाउ एग्जांपल ऑस्ट्रोडिलस, ये प्लांट है, ये प्लांट का नाम है जिसमें एलोबियल एंडोस्पर्म पाया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ